Good morning, class. How are you all? Good morning, ma'am. Good morning, Ajit. Chalo. I think- Good morning, beta. We were on the last chapter, lifelines of a national economy. Yes, ma'am. Do you all have the books with Good morning, you? ma'am. Good morning, beta. Do you all have the books with you? Yes, ma'am. Shall we go for the reading part? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Chaliye. Let us start. Page number 81. Good morning, ma'am. Good morning, Kartike. Can we have Niharika reading? Yes, ma'am. Chaliye, Niharika. Abhyuday, good morning. Can we have the cameras open, class? Yes, ma'am. Ma'am, may I read? Yes, beta, start. Lifelines of national economy. We use different materials and services in our daily life. Some of these are available in our immediate surroundings, while other requirements are met by bringing things from other places. Goods and services do not move from supply locales to demand locales on their own. The movement of these goods and services from their supply locations to demand locations necessitates the need for transport. Some people are engaged in facilitating these movements. These are known to be traders who make the products come to the consumers by transportation. Ajit, Bhumika, Zainab, Sachin, Abhyuday, cameras on. Yes, Thus, ma'am. the pace of development of a country depends upon the production of goods and services as well as their movement over space. Therefore, efficient means of transport and prerequisites Prerequisite. for fast Prerequisite. Beta, development. prerequisite. Prerequisite. Prerequisite for fast development. Movement of these goods and services can be over three important domains of our earth, that is land, water, and air. Based on these, transport can also be classified into land, water, and air transport. For a long time, trade and transport were restricted to a limited space. Beta, With the development beta, Niharika, restricted. Restricted. restricted to a limited space. With the development in science and technology, the area of influence of trade and transport expanded far and wide. Today, the world has been converted into a large village with the help of efficient and fast-moving transport. Wait, Niharika. Wait, Transport Niharika. Niharika, wait. See, we all say that world has become a small space. Do we say this or not? Yes, ma'am. Why do we say this? And because ma'am, population is increasing day by day. No, not because of the population. Just now she has read. What? I am asking why we say that world has become a small space, a small place. because of Ma'am, fast-moving ma'am, transport. एक मिनट निहारिका आपने तो पढ़ा है बच्चा वेट यस कार्तिकेय because ma'am, we can go anywhere we want.
आप लोग इंस्टाग्राम यूज करते हैं, फेसबुक यूज करते हैं? Yes, ma'am. उसमें Yes, पोस्ट Yes, उसमें ma'am. पोस्ट बाहर के लोगों की भी होती हैं, जो किसी एक से कनेक्टेड होता है आपके फ्रेंड ग्रुप में, उसकी भी पोस्ट आपको दिखती है फेसबुक पे भी और सब जगह पे दिखती है, नहीं दिखती है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंट इन द टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन इतना स्ट्रांग हो गया है कि आप घर बैठे दुनिया के बारे में जान सकते हैं, वर्ल्ड के किस कॉर्नर में किस जगह पे क्या हो रहा है, यू आर अपडेटेड विद दैट ओनली बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी, राइट? और ये टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन वाले पार्ट की बात हम कर रहे हैं। तो कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन इतना स्ट्रांग हो गया है कि एक पल में इंसान एक जगह होता है और दूसरे पल दूसरी जगह पर वो पहुंच जाता है बिकॉज ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन, राइट? Yes, ma'am. इसीलिए हम कहते हैं दैट वर्ल्ड हैज बिकम अ वेरी स्मॉल प्लेस, कि कोई भी कहीं भी किसी समय 2 दिन पहले कोई इंसान इंडिया में है, 2 दिन बाद वो बाहर की किसी कंट्री में है। तो इतना फास्ट, इतना क्विक हो गया है हमारा ट्रांसपोर्टेशन कि हम पल में एक जगह, पल में दूसरी जगह पर पहुंच सकते हैं, राइट? रही बात कम्युनिकेशन की, तो कम्युनिकेशन भी इतना ज्यादा स्ट्रांग हो गया है, इतने सारी नई टेक्नोलॉजीज आ गई हैं जिससे कि हम एक कोने में बैठे हुए, गांव देहात में बैठे हुए हमें पता रहता है कि दुनिया में क्या हो रहा है। तो ये पहले पॉसिबल नहीं था, ये अब पॉसिबल हो पाया है बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी, एडवांसमेंट इन द ट्रांसपोर्टेशन एंड द कम्युनिकेशन सिस्टम्स, राइट? Right, class? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Fine. That is why they say that the world has been converted into a large village with the help of the efficient and fast moving transport, right? चलिए बेटा, बिफोर वी प्रोसीड ऑन, जैसे आप लोगों की क्लास खत्म होगी 11:20 पे, 11:20 पे क्लास खत्म होती है ना आपकी? Yes, ma'am. Yes, ma'am. आप लोगों के क्लास ग्रुप पे एक लिंक शेयर किया जाएगा, आपको उस लिंक के थ्रू उस क्लास को ज्वाइन करना है, ठीक है? ओनली फॉर 15 मिनट्स, 11:20 से 11:35 तक, राइट? Yes, ma'am. उसके बाद आपकी Yes, जो ma'am. रेगुलर क्लास है उसको आप अटेंड करोगे। एम आई क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. मैम क्या होगा उसमें? बेटा हमें भी नहीं पता सचिन उसमें क्या होगा, पर कुछ है इंफॉर्मेशन के लिए। वो एक्चुअली रुको, आई विल टेल यू, वेट। ये SPIC स्पाइस में क्या की है, ये सोसाइटी फॉर द प्रमोशन ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक एंड कल्चरल अमंग्स यूथ इज अ वॉलंटरी यूथ मूवमेंट विच प्रमोट्स intangible aspects of Indian cultural heritage by promoting Indian classical, ठीक है? इससे रिलेटेड कुछ है? कोई ऐप डाउनलोड करने पड़ेगा? नहीं, कुछ नहीं करना पड़ेगा बेटा, एक लिंक जैसे जूम मीटिंग्स होती है वैसे ही है ये। आपको सिर्फ एक लिंक शेयर करा जाएगा, उससे आपको उसमें जाना है, 15 मिनट के लिए उस क्लास को अटेंड करना है, ओनली फॉर 15 मिनट्स, एंड देन यू हैव टू ज्वाइन योर रिस्पेक्टिव क्लासेस दैट यू हैव, ठीक है? ओके मैम। माय क्लियर? ओके मैम। Okay, ma'am. चलिए, ओके, कैन वी हैव आर्यन मौर्य रीडिंग नाउ? Yes, ma'am. Aryan, Transport has been able to achieve this with the help of developed communication system. Therefore, equally, transport beta, it is equally developed transport system, sorry, communication system। आपने बोला इक्वल, वो इक्वल नहीं है, इक्वली है लिखा हुआ, ठीक है? therefore transport, communication, and trade are Complementary to each other, complementary to each other. Today, India is well linked with the rest of the world despite its despite its vast size, vast diversity, size, beta, vast size, vast size, diversity, and linguistic and socio-cultural plurality। linguistic मतलब ऑफ लैंग्वेज, हमारे देश में अलग अलग भाषा के लोग रहते हैं, नहीं रहते हैं? यस मैम। यस मैम। Yes, ma'am.
चलिए, लिंग्विस्टिक एंड सोशियो कल्चरल प्लूरैलिटी. Railways, airway, waterway, newspaper, radio, television, cinema, and internet, etc. have एटसेट्रा been बेटा, एटसेट्रा. आर्यन एटसेट्रा बेटा, ठीक है. have been contributing to its सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस. socio-economic progress in many ways. The trades from local to international levels have ट्रेडर्स. आर्यन, इट इज ट्रेडर्स. traders from local to international levels have added to the vitality of vitality of its economy. It has enriched our life and added कहाँ गया? It has enriched our life and added substantially to growing amenities and facilities for the comforts of life. पढ़ो बेटा. In this chapter, you will see how modern means of transport and communication serve as lifeline of our nation and its modern. For a long time, trade and transport were restricted to a limited space. With the development in science and technology, the area of influence of trade and transport economy. It is thus evident that a dense and efficient network of transport and communication is कहाँ पढ़ रहे हो बेटा? last line. For national and global trade of today. Global trade of today. ठीक है. Transport. बेटा एक मिनट, आर्यन रुको, आर्यन रुको, आप रुको बेटा. ये जो आपको फ्लो चार्ट दिख रहा है यहाँ पे, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, Yes, ma'am. ये प्लीज मेक दिस इन योर नोटबुक. ठीक है, Okay. ठीक है. कैन वी हैव कार्तिकेय रीडिंग ट्रांसपोर्ट रोडवेज? थैंक यू आर्यन. चलो पढ़ो Yes, कार्तिकेय. ma'am. हाँ, Transport, roadways. India has one of the largest road networks in the world, aggregating to about 54.7 lakh kilometers. In India, roadways have preceded railways. They still have an edge over railways in view of the ease with which they can be built and maintained. The growing importance of road transport with rail transport is rooted in the following reason. Construction cost of road is much lower than that of railway lines. Road can traverse comparatively more dissected and undulating topography. Roads can negotiate higher gradients of slope and as such can traverse mountains such as the Himalayas. Road transport is it is economical in it is traverse mountains such as the Himalayas. Okay. Road transport is economical in transportation of few persons and relatively smaller amount of goods over shorter distances. It also provides door-to-door service. Thus, the cost of loading and unloading is much lower. Road transport is also used as a feeder to other modes of transport, such as they provide a link between railway stations, air, seaports. Fine, In fine, India, fine. roads are glass. Wait, Okay, बेटा. okay, man. Up till this paragraph, anything to be explained? I think ये हम already discuss कर चुके हैं. इसमें सब कुछ clear है अच्छे से. अगर कोई अभी भी समझ में नहीं आया है तो उसको Ma'am, पूछ लो. हाँ बेटा बोलो. ma'am, these are with बेटा भूमिका क्या कह रहे हो?
भूमिका What क्या is कह रहे हो? mean by this service? Why? Ma'am, विसा विस का मतलब पूछ रहे हो? देन yes ma'am. हम कंपेयर करते हैं ना, विसा विस तब यूज करते हैं, ठीक है? Okay ma'am. Yes. भूमिका मैम आप क्या कह ट्रैवर्स रहे को बता दीजिए। मैम ट्रैवर्स। मैम एक बार फिर से बता दीजिए पूरा। हो? ट्रेवर्स माउंटेन्स सच कैन कह रहा है ट्रेवर्स माउंटेन्स का मतलब वो ये कह रहा है कि भाई जो माउंटेन्स हैं, जैसे एक मिनट रुको, हिमालयास पे भी जो है आप ये समझो कि रास्ता बनाना पॉसिबल हो पाया है। वो अलग बात है कि बहुत ज्यादा हम नहीं बना पाए हैं, बट हाँ समहाउ वी हैव मैनेज्ड टू मेक रोड्स ओवर देयर, है ना? एक वॉकेबल Yes, पाथ ma'am. तो हमने बना लिया है, ठीक है? यस मैम। ठीक है, चलो आप भूमिका आप क्या कह रहे थे बेटा? भूमिका चंदानी, Ma'am, I was saying, ma'am, can you please repeat? Can you please tell me in short what was there in the paragraphs? अभी हमने पैराग्राफ पढ़ा, आपको उसमें कुछ समझ में आया कि नहीं आया? Ma'am, actually, I got disconnected for a. अच्छा, हमने परसों जब क्लास शुरू करा था तो हमने ये सब चीजें आपको एक्सप्लेन करी थी। आप एक बार दोबारा पढ़ लीजिएगा भूमिका, एंड देन लेट मी नो व्हाट यू हैव नॉट अंडरस्टूड, ओके? Yes, ma'am. चलिए, कमिंग टू दी नेक्स्ट पार्ट। जो नेक्स्ट पार्ट है आपका वो ये बताता है कि किस तरीके से जो रोडवेज की अगर हम बात करते हैं तो रोडवेज में हम किस तरीके से रोड्स को क्लासिफाई करते हैं, ठीक है? अब रोड्स की क्लासिफिकेशन जो है वो किस तरीके से करी गई है। रोड्स को गोल्डन क्वाड्रिलेटरल या एक्सप्रेस हाईवेज के रूप में बताया गया है, फिर आपके नेशनल हाईवेज बताए गए हैं, फिर उनको स्टेट हाईवेज के तौर पे बताया गया है, उनको रूरल रोड्स के बेस पे बताया गया है, और उनको एज बॉर्डर रोड्स क्लासिफाई किया गया है। एम आई क्लियर? यस मैम। रोडवेज को Yes ma'am. 6 टाइप्स ऑफ कैटेगरी में कैटेगराइज करा गया है: गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, नेशनल हाईवेज, स्टेट हाईवेज, डिस्ट्रिक्ट रोड्स, रूरल रोड्स एंड द बॉर्डर रोड्स। क्लियर? अब ये जो आपका जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है, इस गोल्डन क्वाड्रिलेटरल को कौन मेंटेन करता है? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, NHAI। आपने देखा होगा जब आप ट्रैवल करते हो तो NHAI की कुछ गाड़ियां खड़ी रहती हैं, जीप्स वगैरह खड़ी रहती है, उस पर लिखा रहता है NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी Yes, ऑफ ma'am. इंडिया, है ना? तो ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का काम जो है वो इन गोल्डन क्वाड्रिलेटरल या आपका जो एक्सप्रेस हाईवेज है इनको मेंटेन करना। नेशनल हाईवेज जो है वो मेंटेन किए जाते हैं बाय द सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, ठीक है? सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उनका जो पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट है वो रिस्पॉन्सिबल होता है टू मेंटेन द नेशनल हाईवेज। फिर अगर हम बात करते हैं स्टेट हाईवेज की, तो जो स्टेट हाईवेज हैं वो स्टेट के पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट जो है वो देखता है। PWD का जो डिपार्टमेंट होता है वो स्टेट नेशनल हाईवेज को, स्टेट हाईवेज को देखता है, उनको बनाता है, ठीक है? और जो स्टेट हाईवेज होते हैं ये आपके कनेक्ट करते हैं स्टेट कैपिटल्स को विद द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स। जैसे लखनऊ और बरेली, बरेली एक डिस्ट्रिक्ट है ना? यस Yes ma'am. तो इसके हेडक्वार्टर को लखनऊ से सड़क जो जोड़ती है उसको हम स्टेट हाईवे कहते हैं, ठीक है? फिर आपका डिस्ट्रिक्ट रोड्स आते हैं। ये डिस्ट्रिक्ट रोड्स आर मेंटेन बाय द जिला परिषद, और ये डिस्ट्रिक्ट रोड्स जो हैं वो आपके डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स को कनेक्ट करते हैं विद द अदर प्लेसेस इन द डिस्ट्रिक्ट, ठीक है? यस मैम। Yes, ma'am. Ma'am, देन कम्स द रूरल मैम हाईवे। ये बरेली टू शाहजहानपुर रोड ये कौन सा हाईवे? क्या चीज? मैम ये बरेली हाईवे है, बरेली टू शाहजहानपुर ये कौन सा है? मतलब आप ये कैटेगरी पूछ रहे हो? आप Yes, कैटेगरी ma'am. पूछ रहे हो? ये नेशनल हाईवे है बेटा, क्योंकि लखनऊ भी जाता है ना। मैम NH24। हाँ, NH24, ठीक है? सचिन आप क्या पूछना चाह रहे हो? आप नेशनल हाईवे का नंबर पूछना चाह रहे हो? No, नहीं मैम, मैं पूछ रहा था कि मैम वैसे कौन सा जो- टाइप की है। कि वो नेशनल हाईवे है कि स्टेट हाईवे है, ये पूछना चाह रहे हो? Yes ma'am, yes. तो वो कनेक्टेड रोड्स है ना, वो नेशनल हाईवे भी है, वो स्टेट हाईवे भी है।
ओके। ठीक है, उसमें कुछ रोड कट के हटे होंगे जो कि आपके बीच, शहर के बीच में से या विलेजेस के बीच में से निकल रहे होंगे या टाउन्स के बीच में से निकल रहे होंगे, वो आपके स्टेट हाईवेज है। ठीक है मैम ग्रुप पे हमारे Okay, मैम मैम। एक लिंक आया है मैम, उसमें मैम टाइम 11 Yes, लिख ma'am. रखा है। नहीं बेटा, ग्रुप में कोई लिंक आ गया है तुम्हारी क्लास का? यस मैम, शेयर उसमें करा, मैम एक टाइम मिनट 11 दे रुको। Yes, रखा है। ma'am, आ गया. नहीं बेटा 11 नहीं, मैं आपको 11:20 पे कनेक्ट करना है। ठीक है, हमने आपको जो बताया है आपको 11:20 पे कनेक्ट करना है वहां पे। ठीक है, आप अपनी क्लास को छोड़ेंगे नहीं, इस क्लास को खत्म करने के बाद वहां Yes, ज्वाइन ma'am. करेंगे। ठीक है, ये काफी लंबा सेशन चलने वाला है, तो आप 11:20 पे ज्वाइन करेंगे, पहले ज्वाइन नहीं करेंगे इसको। ठीक है मैम ये किस बेस पर है? बेटा, आई एम एग्जैक्टली लाइक व्हाट यू आर फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग। मैम मैंने सुना नहीं. क्यों नहीं सुना है? अरे सुन लेना अभी उसमें। अभी हम दोबारा बता देंगे, पहले ये चैप्टर कर लो। Yes. ठीक है, चलिए, तो क्लियर हो गया सचिन आपका डाउट? यस मैम। ठीक है, अब जो रूरल रोड्स होती हैं ये ग्राम पंचायत मेंटेन करवाती हैं, और ये जो रूरल रोड्स हैं ये आपके टाउन्स को कनेक्ट करती हैं, गांव की सड़कों को शहर की सड़कों से कनेक्ट करती हैं। ठीक है, और फिर आपकी आती है बॉर्डर रोड्स। बॉर्डर रोड्स जो हैं ये आपके मेंटेन करे जाते हैं बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। ये पास्ट में ऐसा इसलिए करा गया ताकि बॉर्डर एरिया से कनेक्टिविटी बनी रहे, लोग वहां पे आए जाए देखें वहां पे। तो ये एक तरीके से उन जगहों की इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए है, ताकि टूरिस्ट आदमी जाएगा, जब टूरिस्ट वहां जाएगा तो अलग अलग चीजों की डिमांड करेगा, तो इस तरीके से इकोनॉमी उस एरिया की ग्रो करती है। ठीक है, और आप देखो जब से ये बॉर्डर रोड्स बनना शुरू हुई है तब से लोगों की आवाजाही भी बहुत ज्यादा है उस तरफ, है ना। कभी हम कहीं घूमने जाते हैं और यस हमें पता मैम। चलता है कि भाई उस एरिया में बॉर्डर रोड भी है, तो लोग कहते हैं चलो चलो एक बार देख के आते हैं भाई कौन सा बॉर्डर है, कौन से किन दो उनको जोड़ता है, स्टेट्स को जोड़ता है, या किन दो स्टेट या किसी कंट्री की बॉर्डर अगर है उसको जोड़ता है। ठीक है, यस तो एक तरीके से टूरिस्ट स्टॉप, Yes, ma'am. हाँ एक तरीके से ये टूरिस्ट स्पॉट्स भी बन गए हैं जहाँ पे कि इन्होंने रीजनल जो इकोनॉमी है उसको काफी बूस्ट करा है। ठीक है, लोकल इकोनॉमी को वहां की। ठीक है, यस मैम। चलिए दूसरी यस मैम। चीज, जैसे जो ये जो हाईवेज के जो स्टोन्स होते हैं आपने देखा होगा लगे होते हैं, जिसमें लिखा होता है NH24, NH34, NH27, इस तरीके से लिखा रहता है ना। तो इसके अलग Yes, अलग ma'am. कलर, ये जो अलग अलग कलर्स होते हैं ना बेटा, ये अलग अलग चीजों को बताते हैं। जैसे जो आपका जो नेशनल हाईवे है उसको येलो कलर से कलर किया जाता है, उस पर लिखा जाता है। ठीक है, फिर आपका जो स्टेट हाईवेज है वो ग्रीन कलर से उनको हाईलाइट किया जाता है, नीचे व्हाइट होता है ऊपर ग्रीन होता है। ठीक है, और फिर जो आपके मेन रोड्स होते हैं या जो डिस्ट्रिक्ट रोड्स होते हैं या जो बिग सिटीज के जो रोड्स होते हैं उनको कनेक्ट करा जाता है विद, उनको कलर किया जाता है इधर विद ब्लैक और ब्लू और व्हाइट। ठीक है, ओके मैम। ठीक है, हाँ उसके बाद आपका जो ये है विलेज रोड्स होती है ना, ये ऑरेंज कलर से जो है कलर करा जाता है। मैम कलर होता किस पे है? बेटा पत्थर पे कलर करके लिखा रहता है ना, ये वाला नंबर वो वाला नंबर, यस मैम। स्टेट हाईवे है तो ये कलर से हम बताते हैं, पता चल रहा हमें लगता है कि ये कौन सा, ये क्या कौन सी सड़क है, स्टेट हाईवे है कि नेशनल हाईवे है कि आपकी सिटी रोड है या मेन रोड है या डिस्ट्रिक्ट रोड है या रूरल रोड है। ठीक है, ओके मैम। ठीक है, ये जो आपके रूरल रोड्स होते हैं ना बेटा, ये प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत बनाए जाते हैं, हमने क्लास में लास्ट टाइम बताया भी था आपको। ठीक है मैम यस बेटा अजीत, मैम ये गंगा एक्सप्रेस वे मैम ये नेशनल हाईवे? ये एक्सप्रेस हाईवे में आता है, नेशनल नहीं एक्सप्रेस हाईवे में, मैम ये गोल्डन क्वाड्रिलेटरल गोल्डन क्वाड्रिलेटरल के अंदर आता है। ओके ठीक है, चलिए, यस मैम। can we have बिल्कुल स्ट्रेट हाईवे। can we have Ajit only reading about the roads? Ajit, मैम I can't read. why, what happened? You don't have the book with you? मैम I'm having problem. हाँ, मैम ही इज हैविंग नेटवर्क इशू। अच्छा चलो ठीक है, कोई नहीं, तो let us have Zainab reading.
Yes, ma'am. In India, roads are classified in the following 6 classes according to their capacity. Look at the map of the national highway and find out about the significant role played by these roads. Golden Quadrilateral Superhighways. The government has launched a major road development project linking Delhi, Kolkata, Chennai, Mumbai, and Delhi by 6-lane superhighways. The north-south corridors linking Srinagar and Kanyakumari, uh, and east-west corridor connecting Silchar and Porbandar are part Porbandar, of Gujarat. the project. बेटा ये Gujarat क्वेश्चन at part listen. Sometimes the question is asked, name the places connected with the north south corridors, और name the places connected with the east west corridors. तो ये जो यहाँ पे दी हुई हैं इनको आपको लिखना होगा, ठीक है? Okay, ma'am. You people can always underline these lines. Yes, ma'am. The major objective of these superhighways is to reduce the time and distance between the mega cities of India. These highways projects are being implemented by the National Highways Authority of India, NHAI. National highways link extreme part of the country. These are the primary road systems and are laid and maintained by the Central Public Work Department, CPWD. A number of major national highways run in north-south and east-west direction. The historical Sher Shah Suri Murg is called National Highway number 1 between Delhi and Amritsar. Do you know? Do you know that National Highway 7 is the longest and traverses 2369 km between Varanasi and Kanyakumari via Jabalpur, Nagaland, Nagpur, Hyderabad, Bangalore, and Madurai. Delhi and Mumbai are connected by National Highway 8, while National Highway 15 covers most of Rajasthan. State highways. Roads linking a state capital with different ये districts जो of एक headquarters. मिनट ज़ैनब एक मिनट बेटा, ये जो अभी ज़ैनब ने जो पैराग्राफ पढ़ा है ना, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है? इसको अंडरलाइन कर लो आप लोग. Ma'am, do you know that yellow box? Yes, ma'am. चलो carry on. State highways. Roads linking a state capital with different district squatters are known as state highways. These roads are constructed and maintained by the State Public Work Department, PWD, in state and union territories. District roads. These roads connect the district headquarters with other places of the districts. These roads are maintained by the Zilla Parishad. Other roads, rural roads, which link rural areas and villages with towns and are classified under the category. These roads receive special impetus under the Pradhan Mantri Gramin Sadak Yojana. Under this scheme, special provisions are made so that every village in the country is linked to a major town in the country by an all-season motorable road. Border roads. रुको बेटा. Anything up till here to be explained? No, ma'am. Carry on, Zainab. Border roads. Apart from these roads, border roads organization government of India undertaking constructs and maintains roads in the bordering areas of the country. This organization was established in 1960 for the development of the roads of strategic importance in the north and the northern east border areas. These roads have improved accessibility in areas of critical terrain and have helped in the economic development in these areas. Roads can also be classified in the following types of material used for their construction, such as metalled and unmetalled roads. Metalled and non-metalled.
हमने बताया था मेटल और नॉन मेटल्स क्या, नॉन मेटल रोड्स क्या होती है, पक्की सड़क और कच्ची सड़क, बताया था ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Carry on, carry on. Metal roads may be made of cement, concrete, or even bitumen of coal. Therefore, these are all weather roads, and metal roads go out of use in the rainy season. Road density. The length of road per 100 square kilometer of area is known as density of roads. Distribution of road is not uniform in the country. Density of all roads varies from only 10.04 kilometer in Jammu and Kashmir to 532.27 kilometer in Uttar Pradesh, 2007 to 2008, with a national average of 125.02 kilometer, 207 to 208. Road transportation in India faces a number of problems. Keeping in view the volume of traffic and passengers, the road the volume of traffic and passengers, the road number is inadequate. About half of the roads are unmetered, and this limits their usage during the rainy season. The national highways are inadequate too. Moreover, the roads are highly congested in cities, and most of the bridges and culverts are old and narrow. Railways. Railways are the principal modes of transportation for freight and passengers in India. Railway also make it possible to conduct multi-factors activities like business, sightseeing, pilgrimage, along with transportation of goods over longer distance. Apart from all important means of transport, the Indian Railway have been a great integrating source for more than 150 years. Railways in India bind the economic life of the country as well as accelerated the development of the industry and agriculture. The Indian Railway have a network of 7,133 stations spread over a route length of 64,460 km with a fleet of 9,213 locomotives, 32,220 passenger services vehicles, 6,493 other coach vehicles, and 2,29,281 wagons, such as on March 2011. The Indian Railway is the longest public sector. आपने बहुत ज्यादा पढ़ लिया, चलो ठीक है, कोई नहीं बेटा. एनीथिंग इन दिस टू बी एक्सप्लेन्ड क्लास? No, ma'am. अगर आपको पूछा जाए, ओके, मेरे को इसमें से क्वेश्चंस पूछने दो आपसे. इफ दे आस्क यू व्हाट डिफाइन डेंसिटी ऑफ रोड्स, हाउ विल यू डिफाइन डेंसिटी ऑफ रोड्स? नवजोत सिंह. Navjot, how will you define density of roads? Navjot? Yes. Density of roads को कैसे define करोगे? मैम शायद मेरी बुक गलत है मैम, इसमें डेंसिटी वाला नहीं था मैम. बेटा कैसी बात कर रहे हो, बुक गलत कैसे हो सकती है? मुझे दिखाओ कैमरा खोल के, कौन सी बुक से पढ़ रहे हैं आप, दिखाइए. मैम ये हाँ, कैमरा खोल के दिखाओ. रुको मैम, एक मिनट, देखना इससे आगे मैम. रुक जाओ मैम ये तो है. पेज नंबर कौन सा है ये? मैम 82. 82. रोड डेंसिटी नहीं दी हुई है इसमें? रोड डेंसिटी टॉपिक दिया हुआ है रोड डेंसिटी इसमें? नो मैम. पीछे पेज करो, पीछे करो, टर्न करो. बॉर्डर रोड्स दिए हुए हैं इसमें, बॉर्डर रोड्स. यस मैम. उसके बाद कौन सा टॉपिक है बॉर्डर रोड्स के बाद? मैम ये मैप है. हाँ, मैप के बाद क्या लिखा हुआ है? और क्लोज करो इसको, पास करो. ठीक है, नीचे दिखाओ, सेकंड पिक्चर के नीचे दिखाओ. और क्लियर, और नहीं, क्लियर नहीं हो रहा है ये. पेज 84 पे है बेटा दिया हुआ है ये आगे. नेक्स्ट टॉपिक रेलवे के ऊपर है. रेलवेज जहाँ पे है आपका, उसके ऊपर देखो, रेलवेज के ऊपर जो टॉपिक है देखो,
मैम ये है रेलवे। रेलवे कहाँ पे दिया हुआ है बताओ? मैम ये ऊपर मैम। अच्छा, और इसकी साइड में क्या नीचे दिया हुआ है? पढ़ो वो पैराग्राफ जो फोटोग्राफ के नीचे है, सेकंड वाली फोटोग्राफ के नीचे। मैम ये वाला। हाँ, मैम routes can be also be classified on the basis of the types of material used their construction, such as metalled and unmetalled roads. Metal roads may be made of cement, concrete, or even bitumen or coal. Therefore, these are all weather roads. Unmetalled roads go out of use in the rainy season. उसके बाद क्या टॉपिक है? उसके बाद रेलवेज है। उसके बाद रेलवेज है? ऐसा कैसे हो सकता है? रुको मुझे चेक करने दो। हाउ इज इट पॉसिबल? एक मिनट बस बुक खोलने दो मेरे को। कंटेम्पररी इंडिया, लाइफलाइन ऑफ द नेशनल इकोनॉमी। मैम रोड डेंसिटी। रुको अरे ये तो न्यू बुक्स में तो रोड डेंसिटी दिया ही नहीं हुआ है इन लोगों ने। ठीक है, चेक करें। डिस्ट्रिक्ट रोड्स आए, उसके बाद बॉर्डर रोड्स आ गए, फिर मैप आ गया, फिर ठीक है ये आ गया, उसके बाद रोड्स कैन बी क्लासिफाइड आ गया, फिर रेलवेज आ गया। चलो ठीक है, आपकी बुक सही है नवजोत। ये हम लोग जिससे पढ़ रहे हैं वो शायद बहुत पुरानी बुक है, आपके पास लेटेस्ट जो रीप्रिंट है वो आया है शायद। ठीक है, तो ठीक है बेटा, ये रोड डेंसिटी वाले टॉपिक को कैंसिल कर दो सब लोग। ठीक है, मैम ये बुक 2066 बुक है मैम, 2016 या 2000 जो 2021 की खोली हुई है हमने बुक इस समय। है ना? मैम कट कर दें रोड डेंसिटी? हाँ, मतलब उसको कैंसिल कर दो। ओके। जब वो बुक में है ही नहीं है इन द लेटेस्ट बुक्स तो कोई फायदा नहीं है ना। यस। सही है, चलो तो नवजोत, कैन वी रीड फ्रॉम द रेलवेज? आप दोबारा से रेलवेज पढ़ो, हो सकता है इसमें भी कुछ टॉपिक्स जो है हटे हुए हों। Yes, Railways are the principal mode of transportation for freight and passengers in India. Railways also make it possible for people to conduct multi-serious activities like business, sightseeing, pilgrimage, along with transportation of goods over longer distance. Apart from an important means of transport, the India Railways have been a great integrating force for more than 150 years. Railways in India bind the economic life of country as well as accelerate the development of the industry and agriculture. ठीक है, उसके बाद का जो डाटा आप लोगों की बुक्स पे अगर दिया हुआ है नेटवर्क वगैरह के बारे में, उसको आप कैंसिल कर दो क्योंकि वो न्यू बुक्स में बेटा वो डाटा नहीं दिया गया है। ठीक है, एम आई क्लियर क्लास? यस मैम। मैम रेलवे टॉपिक में रेलवे टॉपिक है, पर रेलवे टॉपिक में केवल